ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ PYQ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ PYQ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, PYQ 2 ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ PYQ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ? PSSB ਦਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ PSSB ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। PSSB ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਿਕਸਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। FCI ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, FCS ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ PSSB ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਰਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 85% ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 15% ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? 15% ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਇਧਰਲਾ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਈਸਟਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਵੈਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਵੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 9ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 9ਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੋਟੈਸਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 9ਵਾਂ ਹੋਟੈਸਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਸਟ ਹੋਟੈਸਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਟੈਸਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਰਥਰਨ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਨਲੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ PYQ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
कि ऑप्शंस आई थिंक 6 मतलब ऐदा कुछ है ना 6 वजने चाहिए ऐ कुछ हुंदा है। देखो मैं कल इन्ने वधिया तरीके नाल तुहानूं समझाया सीगा भी आ तां साडा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। जो सानू पता ही है भी इत्थों सूरज अपना निकलना है, ठीक है, सनराइज हो रहा है ते इत्थे तक ओनू पहुंच उहदियां रेज नूं पहुंचण लग्गिया तां टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो वो क्वेश्चन दे विच सीगा कि मान लो इत्थे 6 वजे ने तां तुसीं दसो गुजरात च उस टाइम की होया होएगा। तो सानू मैं कट के दिखाया सीगा भी जे अगर इत्थे 6 वजे ने इत्थे की टाइम हो जाएगा, इत्थे 2 घंटे पीछे हो जाएगा मतलब 4 वजणगे, ठीक है। तां एक वीडियो नूं ध्यान नाल देखिया करो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ज्योग्राफी लाइन इज पासिस थ्रू द इंडिया। लो जी कल भी यही क्वेश्चन किए सी केड़ी ज्योग्राफिकल लाइन हैगी है अपने इंडिया चो पास कर दिया है, तो वो हैगी है अपनी ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रोपिक ऑफ कैंसर हैगी जिहड़ी वो अपने इंडिया दे विचों पास करती है। वो तुहानूं दस भी दिता सी केड़ी-केड़ियां स्टेटां चो पास करदी है, तो अज दस्सण दी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। आ लो आ गया वापस वही क्वेश्चन। वो कह रहा है द प्लेस ऑफ द लद्दाख सिचुएटेड इन इंडिया इज ए, ਜਿਹੜਾ लद्दाख है ਕਿਹੜੇ इंडिया सिचुएटेड है ਕਿਹੜੇ डेजर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ डेजर्ट रहेगा जी कोल्ड डेजर्ट रहेगा। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ डेजर्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ डेजर्ट ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੇਨਫॉल ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਨਫॉल ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੇਨਫॉल ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ। देखो जो अपना ये अपने इंडिया आ गया, ठीक है, मानसून आएगा तो इत्थे वैसटर्न घाट च सब तो ज्यादा बारिश करदा है बारिश, ठीक है, इत्थे करेगा बारिश। हुण की हुंदा बारिश करन तो बाद वो किधर जांदा जी, वैसे तो उन्होंने बारिश करनी चाहिए राजस्थान च, जे जिहड़ी उहदी अरावली रेंज हुंदी है इन्नी हाइट नहीं है कि इहदे नाल टकरा सके, ठीक है, ये सीधे चली जाती उत्ते जम्मू कश्मीर वाले पासे। हुण अगर मेनली मैं तुहानूं गल कर रहा इत्थों दी वैसटर्न घाट च बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, इत्थे टकराइयां, लेकिन आ जिहड़ा एरिया है इत्थे बारिश हुंदी नहीं, यानी एक ही बन जाता है रेन शैडो जोन बन जाता है, ठीक है, रेन शैडो जोन बन जाता है, किते ना किते इत्थे भी डेजर्ट हुंदे ने, ठीक है। ते वैसटर्न घाट च सब तो ज्यादा बारिश हुंदी, इत्थे सब तो घट बारिश हुंदी है। उस तरह उन्होंने पूछा भी जिहड़ा लद्दाख है वो सिचुएटेड के आप मान लेंगे सिचुएटेड इन इंडिया किधर है, तो उनका प्लेस हुंदा जी कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट क्यों है, ये अपना उपर वाला एरिया आ गया इंडिया का, ठीक है। जे अगर आप गल करिए तो वैसे तो यह प्लेस है पहले आती है काराकोरम रेंज आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी काराकोरम रेंज। काराकोरम तो बाद आएगा लद्दाख एंड जास्कर। यानी अगर मान लो तुमने ये भी पूछा जाए ना जिहड़ा लद्दाख है केड़ी रेंज दे विच केड़ी रेंज दे विच आंदा है, तो अपनी रहेगा जी काराकोरम ते जास्कर रेंज दे विचकार आंदा है, इत्थे आएगा अपना लद्दाख, ठीक है। हुण इस जगह ते की है इत्थे है हिमालय, ठीक है, इत्थे की है हिमालय है। जो अपने मॉनसून वाले आंदियां ने एयरस आंदियां ने, ठीक है, वो विंड्स आंदियां ने, तो की हुंदा है इत्थे टकरांदियां ने, वो सारी बारिश इत्थे कर दिंदी है, परला एरिया की हो जांदा सुक्का रह जांदा है। लेकिन फिर भी एक कोल्ड डेजर्ट क्यों है, हाइट दे उपर हुंदा है, ठीक है, हाइट दे उपर दे होण करके की होगा इत्थे बर्फ जमी रहेगी, जिन्ना भी पानी होगा तैनूं कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। सही है, समझ आ गया सबनूं। चलो नेक्स्ट उन्होंने 54 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जी फॉरेस्ट रेंज इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द कंट्री, यानी फॉरेस्ट रेंज जिहड़ा इंस्टीट्यूट है वो केड़ी सिटी दे विच है फॉरेस्ट रेंज केड़ी सिटी दे विच है, हाँ जी दसो। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जे आप गल करी जाए तो वह हुंदा है जी देहरादून दे विच, ठीक है, देहरादून दे विच 1906 ਨੂੰ एस्टैबलिश किया गया सी। एंड बेंगलोर दे विच सब नूं पता है इसरो है, ठीक है, इसरो दे चेयरमैन का नाम भी पता है सब नूं के-सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर, यानी जिहड़ा कोलकाता है केड़ी रिवर दे किनारे दे उत्ते बनया होया है। देखो अपने जिहड़े P++ वाले ने वो अजकल फोकस इधर भी करन लग गए ने, इवन कि P++ भी दी गल करांगे पंजाब दे ऑल एग्जाम जिहड़े भी कंडक्ट हो रहे ने उहदे विच डांस बारे भी पूछा गया, फैसटीवल बारे पूछा गया, ठीक है, डांस बारे फैसटीवल बारे। दैन उन्होंने की पूछना स्टार्ट भी करता बैंक्स, ठीक है, भी केड़ा शहर केड़ी नदी के किनारे ते बसिया है। हुण आपां नूं उन्होंने पूछा जी इहदे विच कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शनस हैगियां ने 4, असीं चारां नूं सोल्व करांगे। एंड सब तो पहले गल कीती गई है तो कोलकाता आंदा जी हुगली रिवर दे कोल, ठीक है, हुगली रिवर के किनारे ते की आंदा जी अपना कोलकाता आंदा है। उस तो बाद आ गई जी यमुना।
ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਯਮੁਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਮਥੁਰਾ, ठीक है। दिल्ली आ गया, मथुरा आ गया एंड आगरा। आगरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮਥੁਰਾ ਐਂਡ ਆਗਰਾ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੋਮਤੀ। ਗੋਮਤੀ ਆਪਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲਖਨਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੌਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਐਂਡ ਜੌਨਪੁਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਰਿਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ, ठीक है। दिब्रूगढ़ ते गुवाहाटी हैगे ने, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे ते बसे हुए हैं। हो गए चार ऑप्शंस क्लियर। चलो हुण पूछ रहे जी स्टार विच आर फॉर्मड फ्रॉम क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस एज कॉल्ड, यानी जेडे स्टार बनते ने क्लाउड डस्ट तो एंड गैसेस तो, क्योंकि तुहानू पता अपनी जी गैलेक्सीज है ने उत्थे कुछ एयर भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, उन्हां तो मिलके एक स्टार बनता, उन्होंने की कहा जाता है जी? उन्होंने कहा जाता है नैबुला। नैबुला कहा जाता है, ठीक है, नैबुला। लो जी रेड प्लैनेट, सबने मंगलयान मूवी देखी है? मंगलयान मूवी देखी है सबने, ठीक है। उन्होंने पूछा कि विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, तो वो अपना जेड़ा प्लैनेट रहेगा वो हैगा जी मार्स प्लैनेट, ठीक है। मंगल वो अपना मंगल हुंदा है, उन्होंने रेड प्लैनेट कहा जाता है। और अगर तुहानू पूछा जाए अपना जो मंगल मिशन सीगा कदों भेजा गया सीगा, तो 5 नवंबर 2013 ਨੂੰ भेजा गया सीगा, ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ यूज की सी? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया सीगा, ਜਿਹੜਾ कि ਇੱਥੇ तक जा भी नहीं सकता ਹੁੰਦਾ, लेकिन फिर भी ਇਹਨਾਂ ने पहुंचाया सीगा। क्योंकि देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूरी मूवी देखी हुई है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਸਹੀ ਚ ਕੇਸ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਊਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ PSLV, ਠੀਕ ਹੈ, PSLV ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੀਰ पंजाल ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ। ਪੀਰ पंजाल ਰੇਂਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। एक सेकेंड, ठीक है, ये इंडिया अपना। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਹਿਮਾਲਿਆ, ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ शिवालिक, शिवालिक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पूर्वांचल, पूर्वांचल। देखो ट्रांस हिमालय केड़ा केड़ा है, इत्थे अपने आ जाएगी K2, केड़ा आ जाता जी K2 आ जाएगा, ये आ लो, ये आ गया अपना K2, ठीक है। ये आ गया अपना K2, काराकोरम आ गया, ठीक है। उस तो बाद इत्थे आ गया अपने कोलों, ये अपना आ गया केड़ा आएगा इत्थे? देखो मैं दस्या सीगा तुहानू जेड़ा अपना लद्दाख है किधर किधर है, एक काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। तो ये अपना केड़ा आ गया जी? लद्दाख आ गया। फिर ये केड़ा आ गया जी ये नाल ही जांस्कर, ठीक है, जांस्कर आ गया। इन्हीं चीज सब समझ आ गई भी अपने को जांस्कर है गया। फिर उस तो बाद इत्थों शुरू हुंदा है, इत्थों शुरू होके ये अपने को आ गया ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। फिर इस तो बाद आएगा मिडल हिमालय, मिडल हिमालय तो बाद आएगा शिवालिक, दैन ये अपने को आ जाएगा पूर्वांचल, ठीक है। 5 हिमालय हो गए। हुण अगर आप गल करिए, गल करनी है जी अपनी पीर पंजाल रेंज की, और ट्रांस हिमालय दे विच किहड़ियां-किहड़ियां रेंजिस आंदियां ने। ट्रांस हिमालय जिहड़ा इहदे विच किहड़ी-किहड़ी रेंज आएगी? काराकोरम आ जाएगी, लद्दाख आ जाएगी एंड झांस्कर आ जाएगी, क्लीयर है, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने पूछा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिहड़ा हैगा शुरुआत कित्थों होंदी है? नंगा पर्वत तो लैके, ठीक है, इत्थे हैगा नंगा पर्वत,
नंगा पर्वत तो लैके नमछा पर्वत तक, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਚਨਜੁੰਗਾ, ਕੰਚਨਜੁੰਗਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਫਸਟ ਸਾਡੀ K2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੰਗਾ ਪਰਵਤ, ਨੰਗਾ ਪਰਵਤ, ਨਮਛਾ ਬਰਵਾ, ਨਮਛਾ बरवा, नमछा बरवा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, मनसालू, ठीक है। ये अपनी ग्रेटर हिमालय दियां पीक्स ने। हुण आ गई मेन आ गई जी जिहड़ी आप पढ़नी है, वो हैगी है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय दे विच देखो की पैंदा, अपनी पीर पंजाल रेंज पैंदी है, ठीक है। हुण उन्होंने अपने कोल ये चीज पूछी है कि दसो तुसी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੀਰ पंजाल ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल, नाग टिब्बा, तोलाधार, महाभारत रेंज। और पीर पंजाल अपना किधर पै जाएगा, इस जगह ते, ठीक है। आ केड़ी जगह अपनी जम्मू एंड कश्मीर आ रही है अपनी पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये किधर आ गई, ये आ गई अपनी जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर राइट की है जी, जेड़ा पीर पंजाल है किधर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु एंड विच ऑफ द अदर ऑफ द स्टेट। देखो जेड़ी कावेरी रिवर है, सब तो पहला उसका रीजन पता होना चाहिए। कावेरी का ओरिजन होंदा करनाटका तो, ठीक है। करनाटक तो यदा ओरिजन होंदा है। और ये जाती किधर है जी, ये जाती है अपने ईस्ट वाली साइड जाती है, तमिलनाडु दे विच बे ऑफ बंगाल दे विच मिल जाती है, ठीक है। ये जिहड़ा डिस्प्यूट है इन्हां दा अपने जो ब्रिटिश है उस टाइम तो चलता आया सीगा, मैसूर दे विच हुंदा है ते, ठीक है, मैसूर दे विच हुंदा है। क्यों, क्योंकि ना कर्नाटक के पीपल्स नूं ये चीज़ पता लगती है कि जिहड़ी साडी इत्थों ओरिजन होकर कावेरी रिवर तमिलनाडु जाती है तो इत्थे दे लोकां दी खेती बहुत अच्छी होंदी है, तो असीं इस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते। तो इत्थे की करते हैं, डैम बना लेंगे, ठीक है। डैम बनाते तो की होंदा, वाटर रिजर्व कर लेंगे हैं, तो उन्हां कोल प्रॉपर वाटर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। यह हैगा सीगा कावेरी डिस्प्यूट। हुण सबनूं पता लग गया, कहानी सुनाती मैं भी किहदे किहदे विच होया सीगा, तमिलनाडु ते कर्नाटक दे विच होया सीगा कावेरी डिस्प्यूट। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस स्टेट इन इधर फर्दर सब डिवाइडेड। अपने को सब तो पहला की आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा। जदों असीं स्टेट नूं डिवाइड कर रहे हैं सब डिपार्ट दे विच, ठीक है। पहला स्टेट बन गई, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील आ गया, तहसील के अंदर क्या आ जाएगा, परगनास, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लो जी हुण उन्होंने पूछा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। देखो जेड़ियां अपने कोलों एग्जीक्यूटिव पावर हुंदियां ने, दो हुंदियां ने, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होगी, एक होगी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जेड़ा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, एदा हेड की गल की जाए तो एदे हेड कौन होंगे, प्रेजिडेंट। फिर अगर एदी गल की जाए तो एदा हेड कौन होएगा, एदा हेड हुंदा जी गवर्नर, ठीक है। एंड प्रेजिडेंट दे जेड़ा इलैक्शंस हुंदा की हुंदा है, प्रेजिडेंट दा जेड़ा इलैक्शंस हुंदा है, प्रेजिडेंट किवें हुंदा है, अपॉइंट किया जाता है या इलैक्ट किया जाता है। सबनूं पता है इलैक्टेड हुंदा है, इनडायरैक्ट तरीके दे नाल इलैक्शंस हुंदा है एदा, ठीक है। क्योंकि असीं तां कदे पार्टिसिपेट नहीं किया, ਇਹਦੇ ਚ लोक सभा के मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य सभा के मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं, साडियां स्टेट लैजिस्लेचर असैंबली के मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और गोवा के जिहड़ा अपना गवर्नर हुंदा, सॉरी गवर्नर हुंदा, वो की हुंदा, वो अपॉइंट किया जाता है। किहदे द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेजिडेंट द्वारा। किहदी सिफारिश के उत्ते, पीएम की सिफारिश के उत्ते, ठीक है। हो गया इन्नी चीज। तो ਇਹਦਾ आंसर की रहेगा, ਇਹਦਾ आंसर रहेगा जी गवर्नर, ठीक है। गवर्नर हुंदा एग्जीक्यूटिव पावर का हेड। नेक्स्ट है जी, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। लो जी हुण जेड़ा अपना सुप्रीम कोर्ट का जज है उन्होंने रिमूव किद्दां करा सकता है, ठीक है। हुण मेन चीज है, सब तो पहला आर्टिकल नंबर 124, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 एंड क्लोज 4, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 क्लोज 4 दे विच इहदा रिमूवल दस्सिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज का। अगर ग्राउंड की गल की जाए तो इन्होंने दो ग्राउंड दिते हैं, एक तो दिता है जी मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर। एंड सैकेंड है जी इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी। ये डिसाइड कौन करेगा, सानू नहीं पता, ये साडे संविधान च दिता नहीं होया। उन्होंने सिंपल आर्टिकल दे दिता भी ये दो ग्राउंड रहणगे, मिसबिहेवियर ते इनकैपेसिटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज नूं रिमूव करने वास्ते।
अगर इन्हां दे विचों एक भी फाइंड हुंदा है, ठीक है, तो फिर जो मान लो एक भी फाइंड हो जाएगा तो उन्होंने की होएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटा दिता जाएगा। लेकिन हटाने का काम कौन करता है? प्रेजिडेंट। लेकिन कला प्रेजिडेंट नहीं करेगा ये काम नूं, इहदे नाल इहदी हेल्प कौन करती है जी? पार्लीमेंट करती है। पार्लीमेंट इहदी हेल्प करेगी, जो पार्लीमेंट रिपोर्ट इहनूं पेश कर देगी, ठीक है, एड्रेस करेगी, तो उस तो बाद की हो जाएगा, प्रेजिडेंट की करेगा इहनूं, ठीक है, रिमूव कर देगा इहदी पोस्ट दे उत्तों। हुण आ गया समझ? रेजुलेशन आ गया ना समझ? प्रेजिडेंट ओन ए रेजुलेशन बाय द पार्लीमेंट, यानी जो अपना जो पार्लीमेंट दे विच रेजुलेशन आएगा तो प्रेजिडेंट उदों ही इहनूं हटा सकदा है। प्रेजिडेंट अपॉइंट करदा है, ओथ दवांदा है, लेकिन ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सब तो पहली लेयर केड़ी होएगी? सब तो पहली लेयर केड़ी होएगी? क्रस्ट होएगी। अर्थ हैगी है, ये होगी क्रस्ट होगी। क्रस्ट दे अंदर केड़ी आ जाएगी? मैंटल आ जाएगी। ते इनरमोस्ट पूछा है सब तो नीचे वाली, तो वो आ गई जी कोर। ठीक है, समझ आ गया सबनों? कोर। हुण आइए तो अपने को आ गई जी अर्थ दी लेयर। अगर एटमोसफेयर दी लेयर पूछिया जान तो एटमोसफेयर दी लेयर्स किहड़ियां-किहड़ियां होणगियां? सब तो पहले आएगी ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, फिर आती है जी स्ट्रैटोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, ठीक है, फिर उस तो बाद आ जाएगी अपने को मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये अपनी एटमोसफेयर दी लेयर ने। आ लो जी 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। ठीक है, मशरूम रॉक आर फाउंड इन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰੌਕ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਐਂਡ ਸੌਫਟ ਰੌਕ ਤੋਂ। कुछ पार्ट है हार्ड रॉक तो बनया होंदा है, कुछ पार्ट है किते बनया होंदा है जी सॉफ्ट रॉक तो बनया होंदा है। इस तरह अपनी रॉक्स बन जांदियां ने। ठीक है, फिर की होंदा है जदों डेजर्ट वाले एरिया दे विच विंड चलदी है, जदों डेजर्ट वाले एरिया दे विच विंड चलेगी तो वो विंड दे अंदर की होणगे? डस्ट पार्टिकल होणगे, मिट्टी वाले कण भी होणगे। तो जदों उन्नी मतलब वेलोसिटी जदों आंदियां ने तो ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੈਵੀ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਐਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, नीचे तक का जिन्ना भी पार्ट होंदा है सारा इत्थे तक दा रिमूव हो जाता है, इधर तक दा। ठीक है, ये अपर वाला पार्ट की बन जाता अपना, ये मशरूम रॉक्स बन जाता है। हुण क्वेश्चन ये भी अराइज होंदा है कि जेड़ा उपर वाला पार्ट है ये क्यों नहीं इहदे नाल खत्म होंदा? ठीक है, ये तां नहीं खत्म होंदा क्योंकि जेडी अगर मान लो विंड आएगी, विंड दे विच सोइल पार्टिकल है तो सोइल पार्टिकल दे विच अपना कुछ वेट होंदा है, उस वेट ना इन्ना मतलब मास होंदा है कि ऊपर तक नहीं जा सकती, वो नीचे नीचे तक ही रहिंदी है। ठीक है, जिवें डेंगू वाला मच्छर होंदा है पैरां तक ही लड़दा है, उस तरह ही इहदा काम है। ठीक है, तो हुण आपां नूं पुछिया गया जी मशरूम रॉक्स कित्थे फाइंड होंदियां? तां डेजर्ट वाले एरिया दे विच फाइंड कीतियां जांदियां मशरूम रॉक्स नूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। देखो उन्होंने पूछा भी केड़ी लेयर एटमोसफेयर दे विच क्लाउड तो फ्री होंदी है। जेड़ी लेयर क्लाउड तो फ्री होएगी उत्थे ही चलदे आ अपने प्लेन्स। हुण सब तो पहला आ जांदी है जी ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये हैगी है ट्रोपोस्फीयर, ये साडे तो ऊपर हैगी जिहड़ी असीं देख रहे हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर हैगी है यानी बदल इधर हुंदे ने, उस तो ऊपर वाली आंदी है स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर दे विच की हुंदा है? एयर नहीं हुंदी। ठीक है, ना ही क्लाउड हुंदे ने, इत्थे की चलाई जांदी है? प्लेन चलाए जांदे ने। ठीक है, अगर सपोज करो प्लेन चल रहे इत्थे एयर हुंदी तां साडा किन्ना औखा मुश्किल हो जांदा प्लेन उड़ाना। ठीक है, मान लो एयर आ रही है वो सानू कदे उधर भेज दिंदी कदे उधर भेज दिंदी, साडी कोई लोकेशन नहीं आनी सी सही। ठीक है, तो उन्हां दे क्वेश्चन दा आंसर हैगा जी एटमोसफेयर दी लेयर दसो जिहड़ी क्लाउड तो फ्री है, तां आंसर इज द स्ट्रैटोस्फीयर, साडी क्लाउड तो फ्री हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेंपल इज लोकेटेड इज वन ऑफ द कंट्री। दसो वर्ल्ड दा लार्जेस्ट टेंपल हैगा जेड़ा वो किथे लोकेट करदा है?
वर्ल्ड दा लार्जेस्ट टैंपल किथे लोकेट करता है? हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਗਕੋਰ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड केड़ी रहेगी? कंट्री हैगी है जी साउथ अफ्रीका दी, ठीक है। सब तो पहला इत्थे की हुंदी है जी गोल्ड माइनिंग की जाती है, गोल्ड माइनिंग की जाती है और वर्ल्ड का 80% गोल्ड इत्थों मिलता है, वर्ल्ड का 80% गोल्ड इत्थों मिलता है, तां ही उन्होंने कहा जाता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उसका आंसर है जी अपना जॉनसनबर्ग, ठीक है, जॉनसनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नौरा एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने ये चीज लोकेशन पूरी स्टेट दसती, लेकिन अपने को डिस्ट्रिक्ट पूछी है नौरा एटॉमिक पावर प्लांट की, तो वो डिस्ट्रिक्ट रहेगी जी बुंदलशहर, ठीक है, बुंदलशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडिका, इंडिका जी बुक हैगी है वो किस ऑथर ने लिखी है? इंडिका बुक, इंडिका बुक लिखी है जी मैगाथिन्स ने। एंड उस तो बाद 70 नंबर ते आ गया जी राजधारनी, जिहदे च रिलायबल हिस्ट्री दसी हुई है किहड़ी स्टेट दी, तो वो अपनी स्टेट दसो, वो स्टेट दसी हुई है जी जम्मू कश्मीर दी, ठीक है, जम्मू कश्मीर दी हिस्ट्री दसी हुई है। स्कीम ऑफ द लोकल फाइनेंस वाज इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, दसो जी। लोकल फाइनेंस, लोकल फाइनेंस किने चलाया सीगा? तो लॉर्ड मायो ने, ठीक है जी, लॉर्ड मायो। इंडिया विंस फ्रीडम इज द नोबल राइटर बाय, इंडिया विंस फ्रीडम इज द नोबल राइटर बाय इज द अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गवर्नर जनरल दसो जिन्हें स्टार्ट की इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन उस पर्सन ने इंडियन सिविल सर्विस का फादर भी किया जाता है, पर उस टाइम ते सिर्फ ब्रिटिश ही पार्टिसिपेट कर सकते सी इस सिविल सर्विस दे विच, ठीक है। तो दसो तुसी केड़ा गवर्नर जनरल रहेगा? आओ अपना गवर्नर जनरल दसो केड़ा रहेगा? तो गवर्नर जनरल है जी लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस रहेगा जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट है जी, जादूगोड़ा माइन इन झारखंड इज फेमस फॉर, ठीक है, ये अपनी कंट्री दी फर्स्ट माइन है, ठीक है, फर्स्ट माइन है जी कंट्री यूरेनियम दी, ठीक है, फर्स्ट माइन जिथों आप यूरेनियम कढ़िया सी, वो तो मैं दस ही दिता, आंसर सबनों पता लग गया है, इज द यूरेनियम, ठीक है। फाउंडेशंस ऑफ जामा मस्जिद दिल्ली वाज लेड बाय, फाउंडेशंस ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज लेड बाय, जामा मस्जिद दा फाउंडेशंस दसो, जामा मस्जिद किन्ने बनाई सी? जामा मस्जिद बनाई सी शाहजहां ने, शाहजहां ने। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 골ਡਨ ਐਰਾ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਗਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਫੋर्ट बनवाया, ठीक है जी, रेड फोर्ट से दो चीजा बनवाइया ने, एक बनवाया दीवाने आम, ठीक है, दीवाने आम बनवाया, एक बनवाया दीवाने खास, दीवाने खास। दीवाने आम सीगा जिहड़ा रेड रंग दा बनया होया सीगा, दीवाने खास दी जिहड़ी छत सीगी वो सिल्वर दी बनी हुई सी, यानी चांदी दी छत बनी हुई सी, ठीक है। रेड फोर्ट बनवा दिता 1 2। उस तो बाद दसो इहने की बनवाया सीगा? हाँ जी दसो। ਹੁਣ मैं दो चीज़ा दस दित्तियां, गोल्डन पैरा ऑफ आर्कीटैक्चर, तो हुण तुसीं दसोगे इन्हें की कुछ होर बनवाया सीगा। अच्छा एक ऑप्शन और रह गई, आ प्रधान जी भी रह गए ने, औरंगजेब भी रह गए ने, ये भी तुसीं दसने। हाँ जी दसो, जिहड़ा अपना शाहजहां सीगा उन्हें की बनवाया सीगा? हाँ जी दसो। मोती मस्जिद भी बनवाई सी इन्हें, ठीक है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद किधर बनवाई सी? आगरा दे विच। एंड एक मोती मस्जिद अपनी दिल्ली दे विच भी हैगी है, वो अपनी औरंगजेब ने बनवाई सी, ठीक है। औरंगजेब आ गया, औरंगजेब ने की बनवाया? बीबी का मकबरा बनवा दिता, बीबी का
ਮਕਬਰਾ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਾਨਵਾ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਰ ਵਰਸਿਸ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਵਾੜ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ 16 ਮਾਰਚ 1527 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਵਰਸਿਸ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਵਰਸਿਸ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਨਨਸ ਦਾ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੈਨਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਾਗਰਾ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਾਗਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 6 ਮਈ 1529 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਈ 1529 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਾਗਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਲੋ ਦੱਸੋ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ? ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਐਨੀ ਬਸੰਤ। ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ रहेगी फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया रहेगी ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਦਾ ਵੇਦਾਸ। ਵੇਦਾਸ ਪਤਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਮਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ which one of the amongst the following the main trading port of the ਵਿਜੇਨਗਰ empire on the western coasts? ਵਿਜੇਨਗਰ empire ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਰੀਆ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਆ ਐਂਡ ਹੁੱਕਾ ਨੇ ਵਿਜੇਨਗਰ empire ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕਾਲੀਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ who was the amongst associated with the game of the golf? यानी ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਰੈਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਧਿਕਾ ਆਪਟੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਆਫ ਗੋਲਫ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। यानी जे आप इकोनॉमी की डिवेलपमेंट करनी है तो बेस्ट इंडिकेटर केड़ा रहेगा? बेस्ट इंडिकेटर केड़ा रहेगा जी? ओदा बेस्ट इंडिकेटर रहेगा जी ग्रोस प्रोडक्शन, ठीक है। यानी जीडीपी हुंदा है अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक साल दे अंदर देश दे विच जिन्ना भी काम होया, ठीक है, जिन्ना भी असी प्रोडक्शन कीता, कोई भी चीज बनाई है, जो भी प्रोडक्शंस कीते ने। उस तो बाद 82 नंबर कह रहा है जी फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड रिलेट करता है मिल्क दे नाल, दैट इज द वर्गीस कुरियन आ जाएगा आंसर, ठीक है। उस तो बाद डॉक्टर एम.एन. स्वामीनाथन पता ही है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है जी। ये अपने नॉर्मल वॉयलिनिस्ट जेडे हैगे ने बोरलुक हैगे ने, ये वर्ल्ड दे फादर हैगे ने ग्रीन रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट हैगा जी नाम अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट हैगा वर्ल्ड वार 2 तो बाद किया गया सीगा। तो उन्होंने पूछा भी केड़ा परसन एदा मैंबर नहीं हैगा, केड़ा परसन एदा मैंबर नहीं हैगा? तो मैंबर नहीं है गेबल अब्दुल नासिर, ठीक है। हीराकुंड डैम केड़ी रिवर के ऊपर बनया जी? हीराकुंड डैम बनया जी महानदी के रिवर ते, ठीक है। एक किधर हैगी है? ओडिशा दे विच, ओडिशा दी डिस्ट्रिक्ट है संबलवारा, संबलपुर या संबलवारा, ठीक है जी। हुण अपने को रह गई 3 रिवर्स तो बाद पहला आएगा नर्मदा रिवर के उत्ते कल नर्मदा बचाओ अभियान भी किया सीगा। ये आ गया जी अपना सरदार सरोवर डैम, ठीक है। नर्मदा रिवर के उत्ते सरदार सरोवर डैम बनया है। उस तो बाद अपने को आ रहा है जी कावेरी रिवर की गल करिए, कावेरी रिवर के उत्ते की बनया है? कृष्णा राजा, ठीक है, कृष्णा राजा सागर, काला नई डैम एंड अमरवती। और भी बहुत ने लेकिन ये इंपॉर्टेंस नहीं बस, ठीक है।
लो फंडामेंटल राइट्स आर द ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। सब तो पहला आप गल करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। अपने फंडामेंटल राइट्स ने, ठीक है, कितों बोरो किते सी? यूएसए तो बोरो किते हैं। पार्ट नंबर कितना है जी? पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक। यदि ट्रिक दसदा इत्थे, जिन्होंने याद नहीं होंगे उन्होंने दसदा, ठीक है। पार्ट 12 तो लैके 35 तक क्लीयर है नी चीज। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਿਤੇ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। उन्होंने पूछा कि ओरिजिनली, देखो वर्ड देखो की लिखा है ओरिजिनली। पहला जो अपना संविधान बनया सीगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आया 19 तो लैके 22 तक आया। फिर असी लिखा जी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है, ये आ गया अपना 23 तो लैके 24 तक। नेक्स्ट आएगा जी राइट टू रिलीजियंस फ्रीडम, ठीक है। रिलीजियंस फ्रीडम ये अपना आ जाता जी 25 तो लैके आ जाएगा 28 तक, ठीक है, रिलीजियंस फ्रीडम्स। फिर आ जाता राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है, 29 तो लैके 30 तक। एंड फिर आएगा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आ जाएगा आर्टिकल नंबर 31। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32। हुण बच्चे कहणगे भी ये तो साडा पार्ट हैगा नीगा ते आर्टिकल नंबर 31 क्यों लगा दिता? देखो ये साडा पार्ट नहीं है, सबनों पता है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी साडा पार्ट नहीं है, क्यों नहीं हैगा? क्योंकि इन्हू एक साडा लीगल राइट दे दिता गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये साडा की हैगा जी लीगल राइट हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 44 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 300 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ओरिजिनली किन्ने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, तां ओरिजिनली दे किन्ने हैगे जी? 7 हैगे ने। अगर पूछा जाए प्रेजेंट दे कॉन्स्टिट्यूशन च किन्ने फंडामेंटल राइट है तां 6, जिहदे चो ए अपना बाहर है, ठीक है। अगों मैं क्वेश्चन तुहानूं जवाब दे दिता। बाय विच द अमेंडमेंट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इज द रिमूव्ड 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट हुई सीगी जिहड़ी 1978 दे विच होई सी, जिहदे च राइट टू प्रॉपर्टी नूं रिमूव किया गया सीगा। हम देखो इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं खुद दे सकते हो। उन्होंने पूछा कि जेडे अपने आर्टिकल नंबर 14 तो लैके 18 ने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किनू बिलोंग करते हैं, ठीक है। सब तो पहला मैं तुहानूं कह रहा कि जेडे अपने फंडामेंटल राइट्स ने उन्होंने याद करने की ट्रिक देखो की है। सब तो पहला आंदा अपने को इक्वैलिटी आती है, ये आ गई अपने को इक्वैलिटी, ठीक है, ठीक है जी, यही है इक्वैलिटी। इक्वैलिटी है, इक्वैलिटी होंगी है, लेकिन मैं तुहानूं कह रहा कि तुसीं इहनूं लिख लो इक्वल। इक्वल लिख लिया, इक्वल लिख लिया। स्टार्ट कित्थों हो गया? 14 तो 15 16 17 ते 18, ठीक है जी। फिर उस तो बाद आ जाएगी अपने को फ्रीडम, की आ जाएगी? फ्रीडम आ जाएगी। फ्रीडम कितनी आ गई? 19 नंबर 20 नंबर 21 नंबर दैन आ गया 22 नंबर, फ्रीडम आ गया। फिर उस तो बाद की आएगा अपने को? देखो पहला मैं तुहानूं कह रहा इक्वल लिख लो, ये अपने को इक्वल आ गया, राइट टू इक्वैलिटी आ गया। फिर साडे कोल फ्रीडम आ जाएगी, फ्रीडम आ गई। फिर क्या आ जाएगा? एक्सप्लॉयटेशंस आ जाएगा, एक्सप्लॉयटेशंस आएगा। दसो देखो की लिखिया सी, कहते राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आ जाएगा, तो इहनूं तुसीं लिख लो EX, ठीक है। यानी ये 23 नंबर आ गया, ये अपना 24 नंबर आ गया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस आ गया। फिर उस तो बाद अपने को आ जाएगी रिलीजियंस फ्रीडम, देखो की लिखा है? रिलीजियंस फ्रीडम आ गई। लो जी इत्थे तुसीं लिख दो फिर फ्रीडम, ठीक है। यह केड़ी है? रिलीजियंस फ्रीडम है। 25 नंबर 26 नंबर 27 नंबर दैन 28 नंबर। फिर उस तो बाद असीं जा रहे हैं जी, वो कह रहा है जी तुहाडे कोल हैगे कल्चर एंड एजुकेशन राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट नूं लिख लो तुसीं C ते E लिख लो,
ठीक है, 29 नंबर, देन 3 नंबर एंड सी आर इज द आर्टिकल नंबर 32। समझ आ गया। यानी पहला साडे कोल आएगा इक्वल, राइट टू इक्वैलिटी आ गई, ਜਿਹੜੇ आर्टिकल नंबर 14 ਤੋਂ 18 तक आ गए। फिर ਅਸੀਂ फ्रीडम लिखी 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 तक आ गई। फिर ਅਸੀਂ एक्सप्लोइटेशन 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 आ गया। फिर उस तो बाद रिलीजियस फ्रीडम हैगी है, ठीक है, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 तक आ गया। दैन अपने को 29 ਤੋਂ 30 आ गया कल्चर एजुकेशन राइट, 32 आ जाएगा। ਹੁਣ देखो क्वेश्चन च की पूछ रहा है, क्वेश्चन च पूछ रहा है 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 तक किहदे पार्ट च बिलोंग करता है, तो राइट टू इक्वैलिटी है जी 14.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 तक। अगर वो पूछ लेंदा राइट टू फ्रीडम आ गई, सिंपल फ्रीडम आ गई तो 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 तक। अगर ਇਹਦੀ जगह ਤੇ रिलीजियस फ्रीडम ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 तक। आगे समझ, ਇਹ ट्रिक याद कर लिया जी, किते भी तुसी मार नहीं खाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी विच आर्टिकल इन द कंस्टिट्यूशन गारंटी राइट टू द कंस्टिट्यूशन रेमेडीज। आपने ਜਿਹੜਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਰਿਟਰਨ ਅ ਬਿੱਲ ਇਨਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, लोक सभा वाले ने बिल इंट्रोड्यूस किया, उस तो बाद राज्य सभा च गया, दोनों ने पास कर दिता, लेकिन प्रेजिडेंट साहब को पसंद नहीं आ रहा, कहते इहदे च चेंजेस करो। वापस जाएगा, इन्हां दोनों सदनों ने कुछ भी चेंज नहीं किया एंड वापस आया तो हुणे मजबूरी दे विच इहनूं साइन करना पवेगा, ठीक है। तो मतलब किहड़ा आ जाएगा पार्लीमेंट दा ओनली वंस, एक टाइम ही वापस भेज सकदा बिल नूं। ए मैंबर ऑफ द राज्य सभा इज इलैक्टेड फॉर, जिहड़े राज्य सभा दे मैंबर है इलैक्टेड किन्ने चार वास्ते हुंदे आ जी 6 साल वास्ते हुंदे ने, ठीक है। हर 2 साल बाद इन्हां दी की हुंदी है रिटायरमेंट हुंदी है, रिटायरमेंट होएगी। जो हर 2 साल बाद रिटायरमेंट होएगी तो 2 नवे आ जाएंगे, मतलब की है जी परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसोल्व, यानी डिसोल्व भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोक सभा नूं डिसोल्व करता जा सकता है क्योंकि ओहदा जिहड़ा टेन्योर हुंदा 5 ईयर दा हुंदा है, लेकिन इहनूं आपां डिसोल्व नहीं कर सकते, क्लीयर है। नेक्स्ट आ गया जी हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोक सभा एंड राज्य सभा। देखो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, और जिहड़ा ये चीज भेजी है ये राज्य सभा नूं पसंद नहीं आ रही, तो दोनों दे विच की हो जाता डिस्प्यूट हो जाता है। जो दोनों दे विच डिस्प्यूट हुंदा है, जिहड़ा बिल जरूरी हुंदा है वो पास नहीं हो पाता, फिर की हुंदा है, फिर की किया जाता है, फिर की किया जाता है जी, फिर अपना जिहड़ा अपनी गौरमेंट हैगी है वो प्रेजिडेंट नूं कहंदी है भरावा एक काम कर दे, इन्हां नूं फोन करके कह दे भी तुसीं दोनों जने इकट्ठे हो जाओ। जो इन्हां नूं कॉल करेगा वो कॉल की हुंदा है बुलावा भेजदा, वो की हुंदी है जी अपनी जॉइंट सीटिंग, भी बैठ के निपटा लो दोनों जने राजीनामे नाल जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करने ने, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर अपनी जॉइंट सीटिंग आती है 108 दे विच, ठीक है। प्रेजिडेंट दी इन्नी हिम्मत नहीं हैगी कि वो बंदा बुला सके कल्ला, ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ नहीं कह रहा, पीएम नहीं कह रहा, भी ਜਦੋਂ तक वो नहीं कहेगा ना उदों तक ये जॉइंट सीटिंग नहीं बुला पाता। और जॉइंट सीटिंग ਨੂੰ ਹੈਡ कौन करता है, ਜਦੋਂ जॉइंट सीटिंग आती है तो लोक सभा ਦਾ स्पीकर, अगर लोक सभा ਦਾ स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਸਡ, ਕੋਰਮ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਿਕਸਡ, ਕੋਰਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ठीक है। 1/10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1/10 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੂ ਕੈਨ ਡਿਸੋਲਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ना प्रेजिडेंट कर सकता है, ना ही स्पीकर कर सकता है लोक सभा का। इट कैन नॉट बी डिसोल्व क्योंकि टेन्योर 6 साल का है, हर 2 साल बाद इहदे मैंबर रिटायर भी होंगे हैं, 1/3 मैंबर रिटायर होंगे हैं और 1/3 मैंबर ही एंटर भी करते हैं, तो इसका मतलब डिसोल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम एज फॉर द प्रेजिडेंट, हाँ जी मैक्सिमम एज ऑफ द प्रेजिडेंट की है जी, मिनिमम तो सानू 10 रखी है 35 साल, इस तो वड्डा जो मर्जी होवे चलूगा, ठीक है। मिनिमम 10 रखी है, मैक्सिमम का किसी तरह का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ's place, ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ's place ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਿਆਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। The only Indian to win the Olympic gold medal in individual event, हाँ जी only Indian ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਕਿੱਦੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਭਾਲਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡਮੰਡ ਹਿਲੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਮੰਡ ਹਿਲੇਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਰਾਜੇਂद्र प्रसाद। लास्ट क्वेश्चन इज द बिलावल भुट्टो इज द पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान दा, ठीक है, पाकिस्तान। सो इत्थे तक दे अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जी PYQ दे, ठीक है। ते नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी तुहानू प्रोवाइड करा देंगे। सो ऑल दी बेस्ट सारिआं नू, थैंक यू।